Hello everyone, welcome to Learn Law. Like, share and subscribe our channel and follow us on Instagram. So today we are going to start Indian Penal Code. The topic we will cover today is general exceptions. But the general exceptions will be discussed in two parts. This is part 1, excusable defenses or exceptions. In one of the previous videos, we have already discussed what is crime, what were the causes of crime and what were the reasons for bringing criminal law in action. हमारे पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि क्राइम क्या होता है, जुर्म क्या होता है और क्रिमिनल लॉ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी. You can have a look at my previous videos. Let's get started, but make sure you have your books, Beract and a notebook with you. Indian Penal Code. The Indian Penal Code is the official criminal code of India. Citation is Act number 45 of 1860, applicable to whole of India. After 2019 amendment, it is applicable to whole of India. Enacted by Imperial Legislature Council on 6th October 1860, came into force from 1st January 1862. The Indian Penal Code of 1860 is divided into 23 chapters, comprises of 511 sections. But let me show you something. Indian Penal Code right now we have is of 1860 with recent amendments, but Centre is deciding to change IPC and CRPC, which are of British era. तो उन चेंजेस के बाद शायद हमें आईपीसी में बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ऑन मंडे सेड दैट the Centre has decided to completely change the IPC and Code of Criminal Procedure CRPC. So now let's move on to our next slide. The main topic, general exceptions. General exceptions or general defenses are from sections 76 to 106. But this is our first part, and in our first part we are going to discuss till section 91 from 76 to 91. अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये बताना चाहती हूँ कि जनरल डिफेंसेस या जनरल एक्सेप्शंस को आप कब यूज़ कर सकते हैं. अगर आप पे कोई आरोप लगा है कि आपने कुछ क्राइम किया है, लेकिन आपके पास कुछ एक्सप्लेनेशन है देने को कि मैंने इस वजह से मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा, तो आप इन सेक्शंस में अपने डिफेंस ले सकते हैं, अपना बचाव इन सेक्शंस के थ्रू कर सकते हैं. तो जो ऑफेंस का इल्ज़ाम आप पे लगा है आप उससे बच सकते हैं और वो ऑफेंस नो ऑफेंस हो जाएगा. जैसे कि आप पे मर्डर के चार्जेस लगे हैं, लेकिन वो मर्डर करने के लिए आपको किसी ने धमकी दी थी, तो आप यहाँ पे अपना डिफेंस ले सकते हैं सेक्शन 94 में, एक्ट डन अंडर कंपल्शन और थ्रेट. अगर आपको डरा धमका के कोई जुर्म करवाया गया है तो आप यहाँ अपना डिफेंस ले सकते हैं और आप पे जो ऑफेंस का इल्ज़ाम लगा है वो नो ऑफेंस बन जाएगा. लेकिन सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड होता है. अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपने किन सर्कमस्टेंसेस में ये स्टेप लिया और वो लेना सही था या नहीं. तो ये कोर्ट ही डिसाइड करती है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको डिफेंस मिलेगा या नहीं. जनरल एक्सेप्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज़ एक्सक्यूजेबल एंड द अदर इज़ जस्टिफाइबल. So what are excusable defenses? Excusable are those which are the acts excused from criminal liability. Excuse is provided in certain cases where the accused was not possessing any inferable guilty mind at the time of commission of the act, where the offence required the existence of mental element to complete the commission of crime. Therefore, the accused is excused from being punished for the act. इसका मतलब यह है कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है किसी एक्ट को करने के बाद, जैसे कि किसी ने कुछ क्राइम कर दिया लेकिन अब वो उस क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए उसके पास एक्सक्यूज़ है, जैसे कि उसने वो होश में नहीं था, वो इंटॉक्सिकेटेड था, वो उसने नशे में कर दिया, तो वो अपना डिफेंस यहाँ पे ले सकता है, उसको एक्सक्यूज़ मिल सकता है.
उसको एक्सक्यूज़ इसलिए मिल सकता है क्योंकि उसका वहाँ पे कोई गिल्टी माइंड नहीं था, वो गिल्टी माइंड के इंटेंशन के साथ वो नहीं करना चाहता था। तो अब देखेंगे ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस में आते हैं। सो द एक्सेप्शंस विच कवर एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस आर मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शंस 76 and 79, accident section 80, infancy sections 82 and 83, insanity section 84, intoxication section 85। तो इन सेक्शंस को हम एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं और अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इन सेक्शंस को थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट Sections 76 and 79 provides for two different circumstances under which mistake of fact can be pleaded as a defense. Section 76 provides for a defense where the accused has committed an act but he believes in good faith as a reason of mistake of fact that he is legally bound to commit such an act. In the case of Section 79, the defense is available where the accused believes in good faith as a reason of mistake of fact that his act is legally justified. आइए इसको बैराक की लैंग्वेज में समझते हैं। Act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. इसके डेफिनेशन में ये दिया है कि nothing is an offense done by a person who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law. तो यहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी इंसान अगर कोई जुर्म करता है, कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, लेकिन वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है, मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं, और वो गुड फेथ में किया है, अच्छे इंटेंशन के साथ किया है, तो उसको सेक्शन 76 में डिफेंस मिल सकता है। जैसे कि एक फेमस मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया फैक्टेड एक्सक्यूसेड, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेड, जिसका ये मतलब होता है कि अगर कोई फैक्ट्स को लेके ऑफेंस किया गया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की वजह से, तो उसके लिए वो एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो ऑफेंस मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से हुआ है तो उसके लिए एक्सक्यूज़ या डिफेंस कभी नहीं मिलेगा, और ये ऑफेंस गुड फेथ में किया जाना चाहिए बिना किसी गिल्टी माइंड के, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ, तो फिर आपको डिफेंस मिल सकता है सेक्शन 76 में। नाउ सेक्शन 80 विच इज़ एक्सीडेंट। Accident in doing a lawful act is excused under Section 80. Such an act is excused in the absence of criminal intention to commit it, where the accused has caused injury to other persons without possessing any criminal intention or knowledge of committing such an act. The court will consider such commission as an accident if neither willfully nor negligently the accused has caused such injury. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और किसी इंसान से अगर कुछ ऑफेंस हो जाता है जिसमें वो एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर देता है, जिसमें उसको खुद को ही नहीं पता था कि वो कुछ ऐसी हरकत कर देगा, ना उससे वो नेग्लिजेंटली होता है, ना लापरवाही की वजह से होता है, और ना ही अपनी मर्ज़ी से वो करता है, तो उसमें उसको एक्सीडेंट सेक्शन 80 के तहत डिफेंस मिल सकता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक आदमी है जो कि एक छोटे से एक्स के साथ किसी थर्ड फ्लोर पे कुछ काम कर रहा होता है, तो वो काम करते करते वो एक्स जो है वो गलती से उसके हाथ से स्लिप होके नीचे गिर जाता है, और जैसे वो नीचे गिरता है तो बी जो दूसरा इंसान है वो एक्स उस आदमी के ऊपर गिर जाता है, बी के ऊपर, और बी मर जाता है। तो यहाँ ए अपने डिफेंस में ये बोल सकता है कि ये एक एक्सीडेंट है और मुझे इसके बदले डिफेंस मिलना चाहिए, इसमें ना मेरी कोई इंटेंशन थी बी को मारने की, और ना मैं नेग्लिजेंटली काम कर रहा था, और ना ही मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या बी नीचे खड़ा है वो मर सकता है, ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं था। तो ए यहाँ पे अपने लिए डिफेंस ले सकता है सेक्शन 80 में। सो नेक्स्ट इज इन्फेंसी सेक्शन 82।
Section 82 covers the defense provided in case of any offense committed by a child under 7 years of age, as it is considered the child under 7 years of age is mentally incapacitated to be held criminally liable. Further, Section 83 provides for excuse for criminal liability if the offense is committed by a child above 7 years of age and under 12 years, but has not attained sufficient maturity to understand the consequences of the act committed. इसमें सिंपली बस इतना कहा गया है कि जो बच्चा 7 years से कम का होगा वो क्रिमिनली लायबल नहीं हो सकता है, और जो बच्चे 12 years से अबव होंगे वो क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 7 साल से ज़्यादा के होते हैं और 12 साल से कम के होते हैं उनके बीच में ये देखा जाता है कि क्या वो इतने मैच्योर हैं कि वो लायबल हो सकते हैं या वो मैच्योर नहीं हैं इतने कि उनको लायबल हेल्ड किया जाए, और फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि वो लायबल हैं या नहीं और उनको डिफेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंसैनिटी, सेक्शन 84। Section 84 covers the defense in cases where the accused is said to be non-compos mentis, which means the accused was not of sound mind at the time of commission of crime. The provision under Section 84 provides defense for a person who is mentally incapacitated to be held for criminal liability, as the person is incapable of knowing the nature and consequence of the act. The kind of unsoundness of mind considered under Section 84 are an idiot who is not sane from his birth, a person who is not of sound mind due to illness, a lunatic who is having unsoundness of mind at certain periods. इसको अगर सिंपली समझे तो इसमें ये दिया गया है कि अगर कोई इंसान जो कि अनसाउंड माइंड का है, जो कि अपने माइंड के हिसाब से मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो इंसान अगर कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस कर देता है जिसका उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं या इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको पता ही नहीं है कि वो एक क्राइम है या लॉफुली रॉन्ग है या इलीगल है या रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वैसे अनसाउंड पर्सन को डिफेंस मिल सकता है सेक्शन 84 में, जो कि या तो बचपन से पागल है या कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ मेंटल इलनेस है या कोई ल्यूनेटिक है जो किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाली हरकत करता है, कोई पागल हरकत करता है कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। ऐसे लोगों को सेक्शन 84 में डिफेंस दिया जा सकता है बाय कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। और ऐसे इंसान की इंसैनिटी या पागलपन कोर्ट में प्रूव भी करना पड़ता है। अगर हम उसको प्रूव नहीं करते हैं तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। वी हैव टू प्रूव इन द कोर्ट दैट दैट पर्सन इज इनसेन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। सेक्शन 85 इंटॉक्सिकेशन। Section 85 is a provision which can be considered as an extension to Section 84. Intoxicated state of mind is also a kind of non-compos mentis. If the accused is incapable of knowing the nature and consequence of the act at the time of commission and the reason for such incapacity is intoxication, then he is excused from criminal liability. अब इसको थोड़ा easy way में समझते हैं। इसमें ये बोला गया है कि सेक्शन 85 जो है उसको ऐसा मान लेते हैं कि सेक्शन 84 को थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया गया है, और इनटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, अल्कोहलिक स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, उसको भी एक काइंड ऑफ नॉन कॉम्पोस मेंटिस बोला जाता है, जिसमें वो इंसान ये नहीं जानता है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और ऐसे इंसान को क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्यूज़ मिल सकता है अगर वो इंटॉक्सिकेशन या जो अल्कोहलिक पोजीशन ऑफ माइंड में था वो वॉलंटरीली नहीं किया गया होगा, तो ही उसको डिफेंस मिल सकता है उसमें। अगर उसने अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक किया है अल्कोहल तो उसको वहाँ पे डिफेंस नहीं मिल सकता है। वॉलंटरी ड्रंकनेस इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम। ऐसा एक केस मिर्ज़ा गनी बैग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है।
और ये भी मेंशन है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव दैट इन स्पाइट ऑफ ड्रंकनेस द एक्यूज्ड हैड इंटेंशन टू कमिट क्राइम। और अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर देता है कि जो नशे में था इंसान, वो नशे में होने के बावजूद भी, उसके पहले भी जब वो नशे में नहीं था उसके पहले भी उसका ये इंटेंशन था कि उसको एक क्राइम करना है, उसको एक्यूज को मारना है, उसका वही इंटेंशन था नशे में नहीं रहने के बावजूद भी। और अगर प्रोसिक्यूशन ने उसके गिल्टी माइंड को, उसके इस गिल्टी इंटेंशन को प्रूव कर दिया, तो जो एक्यूज्ड है उसको इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85 का डिफेंस नहीं मिल सकता है। रेस्ट द कोर्ट डिसाइड्स according to circumstances of the case. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.